Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Globalization, and under this chapter, we were discussing the consequences of the process of globalization, and we have discussed the political consequences and the economic consequences, and we were discussing the cultural consequences, and we have seen that first of all we have discussed the negative cultural consequences, we can say, because we observed that because of globalization there is a homogenization of the culture. The culture of the whole world is westernized. Western culture is being adopted by almost all the countries of the world, and the distinctiveness of each and every culture is missing. Everywhere we find Western culture and Western lifestyle, it is given more importance by the people. Instead of giving importance to our own culture, we give more importance to the culture of the Western world, because it happens, it's natural. Whichever country is powerful in the world politics, that country make the people of other country believe that the culture of that country is the most or the culture of that country is the most superior, है ना. ये this feeling is there, and that is why we want to adopt Western culture, and this is the reason that the cultural homogenization has happened, and very different types of terms are used in order to describe this phenomena कि जो western impact जो culture पे हमारे बहुत ज़्यादा है. इसके लिए एक term हमने देखा था, we have seen McDonaldization, because wherever we go we can see McDonald. तो ये क्या है, ये वेस्टर्न कल्चर जो है वो हमें हर जगह हमारे लाइफ के साथ बिल्कुल वो हो गया, मिंगलिंग हो चुकी है. अब ये हमसे जुड़ चुका है. तो जहाँ भी हम जाते हैं हमें अपनी जो अपनी कल्चर से रिलेटेड जो अपनी फूड हमारे जिस तरह की खान पान की जो हमारी चीज़ें थी उसकी जो आउटलेट्स हैं वो हमें कम दिखते हैं. वो कंपैरेटिवली उतने अट्रैक्टिव नहीं होते हैं जितना अट्रैक्टिव हमें मैकडोनाल्ड लगता है, क्योंकि वो एक बहुत ही रिच कंट्री की को बिलोंग करता है. वो एक एमएनसी है, एक बहुत ही रिच कंट्री को बिलोंग कर रहा है, और उसके जो आउटलेट्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा उस पर खर्च किया जाता है. तो दैट इज़ वाई दे अट्रैक्ट अस, है ना. हम उस तरफ ही जाना चाहते हैं. तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स, एंड but we have also started this discussion that the consequence on culture is not only negative. It's not that there is only negative cultural consequence of the process of globalization. What we find that there are some positive elements also, and what is important is our व्यू. हम किस नज़रिए से किसी चीज़ को देखते हैं. एज आई टोल्ड यू, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट. तो कल्चर इज़ नॉट समथिंग विच रिमेन्स स्टैटिक. इट नेवर हैपन्स. कल्चर इज़ ऑलवेज चेंजिंग. कल्चर हमेशा बदलता रहता है, ये कभी स्टैटिक नहीं रहता है. एंड from the ancient time we can experience, we are observing that the culture is affected by the outside influence. outside influence, external influence जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा culture पर impact डालते हैं. So many new elements are added in the culture because of external influence. अब this external influence can be can sometimes
this external influence can reduce our choices. So in that situation we can say it negative because इसने हमारे choices को reduce कर दिया, ठीक है। लेकिन जहाँ पर वो हमारे choice को reduce नहीं कर रहा है वहाँ पर हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। जहाँ पर वो हमारे चॉइसेस को बढ़ा रहा है एक्चुअली, इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द चॉइसेस इट इज एक्चुअली increasing the number of choices in front of us, then in that situation we will say that it is not negative. चॉइस को घटाया कब हम कह रहे हैं, जैसे हमने मैकडोनाल्डाइजेशन कहा। मैकडोनाल्ड का जो रेस्टोरेंट है वो हमें बहुत दूर से ही नज़र आ जाता है और हम कहीं और जाने की बजाय उसी में सीधे जाते हैं। यहाँ हमारा चॉइस जो है वो रिड्यूस हो रहा है। हमारे सामने और भी चॉइसेस हैं बट वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू अनदर चॉइस। इस मैकडोनाल्ड के कारण जो अदर चॉइसेस थे उसको हमने वो हमारे सामने एग्जिस्ट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है। वहाँ जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, बाकी जगह में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, प्राइस भी कम होता है। ऐसा नहीं है कि प्राइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है जिस जगह की मैकडोनाल्ड की हम बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों होती है? ये चीज़ें जो होती हैं इसके कारण हमारा जो चॉइस है वो श्रिंक कर जाता है और तब हम उसको नेगेटिव कहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम व्हाट वी फाइंड कि जो हमारा चॉइस है वो हर 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 समय ऐसा नहीं है कि बिकॉज ऑफ दिस इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर हमारा चॉइस लिमिट ही हो रहा है, हमारा चॉइस कम हुआ है। बल्कि कुछ ऐसे भी हम कई ऐसे एग्जांपल्स देख सकते हैं जहाँ पर इसने कि हमारे चॉइसेस को बढ़ाया है। सपोज जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो मेनू हमें मिलती है उसमें आज हमारे सामने कितने सारे चॉइसेस हैं। आप इंडियन भी खा सकते हो, आप कॉन्टिनेंटल भी खा सकते हो, आप चाइनीज़ खा सकते हो, स्नैक्स में हमें कई तरह के आइटम्स मिलते हैं। तो ये इसने हमारी चॉइस को बढ़ा दिया है। और अगर इफ़ हमें मसाला डोसा खाना है तो हम मसाला डोसा ही खाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम घर से सोच के निकले कि आज हमें मसाला डोसा खाना है और हम जाके वहाँ बर्गर खा लें। नॉर्मली इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ये नहीं होगा। अगर हमें डोसा खाने की इच्छा है तो हम डोसा ही खाएंगे। और इस तरह से जो बर्गर है जो कि एक वेस्टर्न कल्चर का एलिमेंट है, हमारे कल्चर में, हमारे सोसाइटी में जो इजीली अवेलेबल है, वो कोई चैलेंज नहीं पोज करता है मसाला डोसा का, क्योंकि मसाला डोसा का सब्स्टिट्यूट कभी भी बर्गर नहीं हो सकता। अगर हमें मसाला डोसा खाना है तो हम मसाला डोसा ही खाएंगे, हम बर्गर नहीं खाएंगे। तो ये क्या हुआ है, ये सिर्फ हमारे चॉइसेस बढ़ गए कि आज हम मसाला डोसा खाएं या बर्गर खाएं, ये हम सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है मसाला डोसा। आज हमारे सामने ऑप्शंस बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नॉट नेगेटिव। यहाँ पर हम इसको नेगेटिव नहीं कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ब्लू जीन्स है वो क्या हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ब्लू जीन्स, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि बहुत जो टीनेजर्स होते हैं उनके लिए जीन्स जो है वो मतलब ऐसा हम सोच नहीं सकते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली में, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो भी चाहत रखते हैं, है ना, कि एक हमारे पास जीन्स होना चाहिए। एंड ब्लू जीन्स इज पर्टिकुलरली फ्रॉम द यूएस, है ना। तो यूएस का जो कल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ब्लू जीन्स है, वो आज हमारे कल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन चुका है ये। बट what we combine with this blue jeans, अगर हम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू की बात करते हैं, अगर या फिर कहीं भी, ऐसी नहीं बात है कि वहीं की हम बात करें, कहीं भी ये एक बहुत ही हमारे लिए नॉर्मल सी चीज़ होती है जब हम देखते हैं कि नीचे ब्लू जीन्स पहने हैं और ऊपर खादी का कुर्ता पहने हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है
कि ये जो ब्लू जीन्स हमारा है दैट इज फ्रॉम यूएस। अब इस ब्लू जीन्स को हमने किसके साथ मैच किया? हमने इसको मैच किया खादी के कुर्ता के साथ, है ना। तो ये जो खादी के कुर्ता के साथ हमने उसको मैच किया, ये कहाँ का खादी कुर्ता कहाँ की कल्चर का एलिमेंट है? ये इंडिया के कल्चर का एलिमेंट है ना, जिसमें कि खादी और कुर्ता दोनों ही हमारे कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जीन्स के ऊपर हमने खादी कुर्ता पहना, और ये सिर्फ आपको इंडिया में तो दिखता ही है, जो हमारे टीनेजर्स हैं वो पहनते हैं। हम सब इसको एक्सपीरियंस करते हैं, हम भी पहनते हैं, कभी किसी समय हम भी शायद पहने हो, या हमें पहनने की इच्छा हो। हमें भी अच्छा लगता है कि खादी के ऊपर ये जीन्स के ऊपर खादी का कुर्ता बहुत स्मार्ट लगता है ना। तो ये क्या है? दिस इज मिंगलिंग। कल्चर जो है वो मिल रहा है, कल्चर के जो हमारा जो एलिमेंट है वो भी मौजूद है, और एक नया एलिमेंट भी उसमें ऐड हो गया। हमारा ये एलिमेंट था खादी का कुर्ता, इसमें एक नया एलिमेंट ऐड हो गया ब्लू जीन्स। तो ये क्या है? ये हमारी कल्चर को क्या कर रहा है? इट इज मेकिंग आवर कल्चर रिच, एनरिच कर रहा है, एनरिचमेंट हो रहा है कल्चर का। जितनी ज्यादा कल्चर में डाइवर्सिटी आएगी, कल्चर उतना एनरिच होता है। तो एंड वन मोर थिंग, you can see people wearing blue jeans with khadi kurta in US also. The people belonging to US में रहने वाले Indians की नहीं बात कर रहे हैं। I'm not talking about Indians who are living in US. They are wearing this blue jeans with khadi kurta. No, original US young people or old people, anyone, they are wearing this. वहाँ भी ये चल चुका है, ये फैशन में है, इट्स ट्रेंड, इट्स एन ट्रेंड कि पीपल वेयर ब्लू जींस विथ खादी कुर्ता। तो इसको हम क्या कहेंगे? अगर अमेरिका में भी हमारे खादी के कुर्ता लोग पहन रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन, या फिर हम इसको कहेंगे कि ये एक तरफ से सिर्फ नहीं है कि सिर्फ वेस्टर्न कल्चर का ही इम्पैक्ट हमारी कल्चर पे आ रहा है, बल्कि हमारा कल्चर भी वहाँ पहुँच रहा है। वहाँ भी जो यूएस का कल्चर है उसमें भी हमारे इंडियन एलिमेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हम कहेंगे इस तरह से जो कल्चरल कंसिक्वेंसेस हम देख रहे हैं उसमें कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स, दीज आर द पॉजिटिव एलिमेंट्स। So this cultural exchange is not one way, but actually it's a two-way exchange. Two-way exchange in इंडिया, ये यूएस से आया हमारे कंट्री में, है ना, और ये खादी कुर्ता हमारी कंट्री से गया यूएस में। तो दिस इज टू-वे टू-वे एक्सचेंज। वहां से कुछ आ रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, तो ये क्या है? दिस इज पॉजिटिव, यही होना चाहिए। और जब हम कहते हैं कि सारा कुछ वेस्टर्न ही हो गया, वो दैट इज निगेटिव, कि हमारा एलिमेंट नहीं रहा कहीं भी। बट अगर हमारा एलिमेंट यहाँ भी है और वहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है, तो ये इसको हम पॉजिटिव कहेंगे, इसको हम टू-वे एक्सचेंज कहेंगे, और इसको हम कल्चरल हेट्रोनाइजेशन भी कहेंगे। हेट्रोनाइजेशन क्या हुआ? जबकि डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो कल्चर में मिले होते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि कल्चर के अंदर जो डाइवर्सिटी के जो एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं कि कल्चर जितना डाइवर्स होगा उतना रिच होगा। ये डाइवर्सिटी क्या है? दिस इज हेट्रोजेनाइजेशन। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कल्चर जो है हमारा, उसमें एक एलिमेंट नहीं है। ये नहीं कि हम कहेंगे कि इंडिया के कल्चर में तो बस वेस्टर्न को ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। नो, वेस्टर्न कल्चर का भी एलिमेंट है और हमारी कल्चर का भी एलिमेंट है। और आज के समय में जो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है वो है योगा। योगा का जो इम्पोर्टेंस आज पूरी दुनिया में हो चुका है, वो क्या है? दैट ऑल्सो प्रूव्स कि जो कल्चर है वो सिर्फ वन वे एक्सचेंज नहीं हो रहा है, वन वे नहीं है, ये टू वे एक्सचेंज है।
यहाँ से भी चीज़ें वहाँ जा रही हैं, वहाँ से चीज़ें यहाँ आ रही हैं। आज इंटरनेशनल योगा डे हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इंटरनेशनल योगा डे है। इट्स नॉट अबाउट ओनली आवर कंट्री, बट पूरी दुनिया योगा डे मनाती है। क्यों मनाती है? क्योंकि योगा के इम्पोर्टेंस को समझा गया, और अगर योगा का इम्पोर्टेंस समझा गया तो वो हमारी कल्चर का इम्पोर्टेंस है ना। तो इससे हम इसी जो हमारा जो कंक्लूजन है वो यही है कि जो कल्चर है वो हेटेरोनाइजेशन भी उसका हो रहा है। ठीक है। सो इस हेट्रोजेनाइजेशन का क्या मीन हो रहा है कि हर कल्चर जो है वो और भी ज़्यादा डिफरेंट बन रही है, और भी ज़्यादा डिस्टिंक्ट होती जा रही है, क्योंकि हर कल्चर में एक कुछ नया एलिमेंट जो है वो ऐड हो गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि कल्चर में डिस्टिंक्टिवनेस भी आ रही है। तो वी आर सेइंग बोथ द थिंग्स एट द सेम टाइम। ऑन दी वन हैंड वी आर सेइंग कि इससे होमोजेनाइजेशन हो रहा है। पूरी दुनिया की कल्चर जो है वो वेस्टर्न कल्चर के जैसी हो गई है। वेस्टर्न कल्चर जो है वो हम पे डोमिनेटिंग हो चुका है। हमको जहाँ हम जाते हैं हमको वहाँ पर वेस्टर्न कल्चर के एलिमेंट ही नज़र आते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड वी आर सेइंग कि ये कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन को भी इसके कारण आ रही है। यस, अगर हम जैसे कि हमने खादी के कुर्ता और ब्लू जीन्स की जब बात की, दैट इज कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन, क्योंकि हमने अपने एलिमेंट को जिंदा रखा है। इट्स नॉट कि हमने हमारा एलिमेंट बिल्कुल ख़त्म, हम सब कुछ वेस्टर्न को अपना लिए, नहीं, हमने अपने एलिमेंट को रखते हुए ये वेस्टर्न को अडॉप्ट किया है। तो इसी तरह से योगा का जो इम्पोर्टेंस पूरी दुनिया में हो गया, जो ये बता रहा है कि ये जो एक्सचेंज हो रहा है वो सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रहा है कि सिर्फ वेस्ट के ही एलिमेंट्स को हम लिए जा रहे हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमसे दुनिया को कुछ सीखने के लिए है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है ना। तो यही जो है दिस इज पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस कि जो हर कल्चर जो है वो अपने आप में डिस्टिंक्ट बन गया, उसमें बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें आ गई बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो ये हमारा जो है कल्चरल इम्पैक्ट का जो पॉइंट है वो हमारा एंड होता है, और इसी के साथ हमारा consequences का जो पोर्शन है दैट इज over. Okay, and now we move to another subtopic, and that is India and globalization. So India and ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि इंडिया जो है वहाँ ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, क्या लोगों का रिस्पांस है। तो इन दिस रिगार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो दैट ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ मॉडर्न फिनोमेना फॉर इंडिया। एंशिएंट टाइम से हमारे यहाँ ट्रेडिंग होती थी, बाहर से सामान आते थे, यहाँ से ट्रैवलर्स जाते थे, गुड्स की, पीपल का आना जाना, आइडियाज़ का आना जाना होता रहा था। फिर जब ब्रिटिश मॉडर्न टाइम आया और कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट होता है, हम ब्रिटिश रूल में आ जाते हैं। तो ब्रिटिश रूल के समय भी ग्लोबलाइजेशन का ही एक फॉर्म था कि हमारे कंट्री से जो रॉ मटेरियल्स थे वो बाहर जाते थे एंड फिनिश्ड गुड्स यूज्ड टू बी एक्सपोर्टेड टू इंडिया, है ना। दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, but that was highly exploitative because our country was just become a market for the foreign goods. तो जो भी हुआ इन सब के कारण बहुत जो एक्सप्लॉयटेशन था, डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर था, हमारा आंदोलन चला और हम आज़ाद हो गए, है ना। एंड आफ्टर बिकमिंग इंडिपेंडेंट जो हमारे सामने सबसे बड़ा एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज वाज टू डेवलप द इकोनॉमी। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की, जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, वो यही थी कि हम अपने ऊपर डिपेंड होके रहेंगे, किसी और पे हमको रिलाई नहीं होना है।
एंड इससे क्या हुआ कि इसी के साथ साथ एक ये समझ में आई कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज नए नए, उस समय तो हमारे किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, बहुत कम इंडस्ट्रीज थे, तो नए नए इंडस्ट्रीज ओपन करने थे। फिर जब नए इंडस्ट्री ओपन होंगे तो उनको क्या होता है ना कि एक तरह का प्रोटेक्शन का नीड होता है। प्रोटेक्शन क्या कि नए इंडस्ट्री आ रहे हैं, वो जो चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, हो सकता है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी ना हो सकता है उसके प्राइस भी कुछ ज़्यादा हो, क्योंकि एवरीथिंग इज स्टार्टिंग, है ना। तो इन दिस सिचुएशन इफ द कंट्री कीप्स importing goods from the outside world, then what will happen? बाहर से चीज़ें आ रही हैं, कंट्री में वही सामान अपनी जो इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन हमने नया नया सीखा है, हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी नहीं हुआ था उस समय। तो ऐसे में जो बाहर से चीज़ें आएंगी और जो कंट्री में प्रोड्यूस होंगी, उन दोनों चीज़ों की अगर क्वालिटी को हम कंपेयर करेंगे तो व्हाट वी विल फाइंड कि द क्वालिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और दैट गुड विच हैज़ बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम द फॉरेन कंट्री इज हाई, है ना, उसकी क्वालिटी हाई होगी, क्योंकि हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ था, सब कुछ नया नया स्टार्ट हो रहा था, और हो सकता है उसकी प्राइस भी कुछ कम हो। ऐसे में क्या होगा कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको वो तो ग्रो ही नहीं कर पाएंगी, बिकॉज पीपल विल प्रेफर टू परचेज द इम्पोर्टेड आइटम्स, because if it is good in quality, if it is cheaper in rate, obviously people will go for the imported goods only. So in that situation our domestic industries will be collapsed, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो इसी डर को ध्यान में रखते हुए हमारी जो उस समय की जो गवर्नमेंट थी, न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, उसने एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म क्या हुआ? प्रोटेक्ट करना। जो इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ की थी, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी। जैसे एक दीज इंडस्ट्रीज वर न्यूली इमर्ज्ड, है ना, नए नए उनका इमर्ज किए थे वो इंडस्ट्रीज। जैसे न्यूली बॉर्न बेबी होती है, बेबी को, जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर की जरूरत होती है ना, हम उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, हर तरह की चीज़ से बचा के रखते हैं, और जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर हम उनको उतना प्रोटेक्शन की नीड नहीं होती है ना। तो उसी तरह से जो न्यू इंडस्ट्रीज थे हमारी कंट्री के, उनको गवर्नमेंट ने ये फील किया कि उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन क्या चीज़ से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? प्रोटेक्शन की ये ज़रूरत है कि बाहर से सामान का आना हम बंद कर दें, या फिर उन पर इतना हाई टैरिफ लगाएं। टैरिफ क्या हुआ? जो ड्यूटी लगाते, जो टैक्स लगाते, कोई भी चीज़ जब बाहर से अंदर आती है, मतलब दूसरे कंट्री से जब हम अपनी कंट्री में उसको इम्पोर्ट करते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, जिसको हम टैरिफ कहते हैं। इट्स नॉट टैक्स, इट इज़ कॉल्ड टैरिफ। तो प्रोटेक्शन का ये मतलब हो रहा है कि या तो हम बाहर से बिल्कुल सामान को लाना ही बंद कर दें, या फिर क्या करें कि जो बाहर से सामान आ रही है उस पर टैरिफ बहुत ज़्यादा हाई रेट पे लगाएं। तो क्या होगा कि उनका प्राइस बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली जब टैरिफ ज़्यादा लगेगा तो उनका प्राइस बढ़ जाएगा, और प्राइस बढ़ जाएगा और तब वो हमारे मार्केट में आएंगी। तब क्या होगा कि पीपल विल नॉट परचेज दैट हाई प्राइस्ड इम्पोर्टेड गुड, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है। और तब लोग किसको खरीदेंगे? जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आइटम्स हैं, दे विल परचेज ओनली दैट आइटम्स, दोज आइटम्स। तो ये क्या हो जाएगा? इससे हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको ग्रो करने में आसानी होगी, क्योंकि उनके सामान को लोग खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ाना होगा, सप्लाई बढ़ाने का मतलब कि ग्रोथ होगा, है ना। तो इसी को प्रोटेक्शनिज्म कहा गया। यही हमारी गवर्नमेंट ने इसी पॉलिसी को अडॉप्ट किया कि हमको अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है, और इसलिए ट्रेड पे बहुत सारे, इसको हम जो टैरिफ्स लगाए जाते हैं ना, इसको हम बैरियर कहते हैं। बैरियर क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन। ट्रेड को ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है कि एकदम फ्रीली ट्रेड नहीं हो, कि जो भी चीज़ें आ रही हैं बिना किसी टैरिफ के वो आ जाए, तो फिर तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आने लगेंगी, उनका प्राइस भी कम होगा, है ना। तो ये हमारी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया। लेकिन इसका
कुछ तो अच्छा इम्पैक्ट हुआ कि जो हमारे न्यू इंडस्ट्रीज थे वो खड़े हो पाए, अपने उनका प्रोडक्शन बढ़ा, वो सरवाइव कर पाए, है ना, आगे ग्रोथ उनका अच्छा हुआ। लेकिन साथ ही साथ इसके बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट हुए। निगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? जब हम प्रोटेक्शन देंगे इस तरीके से कि बाहर से आने वाली चीज़ों को रोक दें या उनका प्राइस बहुत बढ़ा दें टैरिफ इम्पोज करके, देन इन दैट सिचुएशन एक्चुअली वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेक्शनिज्म, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको वो डर नहीं रहा कि बाहर से भी सामान आएगा, लोग उसको ना खरीद ले, बिकॉज दे वर नोइंग कि बाहर से जो सामान आ रहा है उसका प्राइस तो बहुत ज्यादा होगा, तो पीपल विल नॉट बी एबल टू परचेज दैट, सो पीपल विल बी परचेजिंग ओनली द प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो ये जो आपको एश्योरेंस मिल गया ना, दिस इज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज इस तरह का एश्योरेंस जब भी मिलता है तो क्वालिटी में रिडक्शन आ जाता है ना। तो यही हुआ हमारी कंट्री में, क्वालिटी पे ध्यान फिर नहीं दिया गया। कंपटीशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली प्रोटेक्शनिज्म से क्या किया जा रहा है, कंपटीशन को एलिमिनेट किया गया, और जब भी कंपटीशन नहीं होगा तो फिर हमें न तो क्वालिटी अच्छी मिलेगी और न रेट सही मिलेगा। कंपटीशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर क्लास में हमें पता है, suppose I am a student and I am knowing that no one is able to get more marks than me, I will be the highest scorer in any exam, then what will happen कि हम जितना मेहनत करते, अगर ये डर होता कि कोई और को भी हमसे ज़्यादा आ सकता है, तो उस केस में हम जितनी लेबर करते उतना लेबर हम इस केस में नहीं करेंगे, जबकि हम एश्योर्ड हैं कि किसी को भी हमसे ज़्यादा नहीं आ सकता है, तो हम उतनी मेहनत नहीं करेंगे, और मेहनत नहीं करेंगे तो हमारी क्वालिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। सो सेम थिंग, वही चीज़ यहाँ पर है। सामान हम बाहर से आने नहीं दे रहे, टैरिफ ज़्यादा लगा दे रहे हैं, तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको एक तरह का प्रोटेक्शन आपने दिया, कंपटीशन को एलिमिनेट कर दिया, तो सबसे जो बुरा इम्पैक्ट पड़ा वो हमारी क्वालिटी और प्राइस दोनों पे पड़ा। और इतना ही नहीं, कुछ जो क्रिटिकल सेक्टर्स थे, क्रिटिकल मीन्स जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स थे, लाइक हेल्थ सेक्टर, हाउसिंग, एजुकेशन, ये सब में जो था ना कि बिल्कुल भी सही ढंग से ग्रोथ नहीं हो सका, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा और किसी तरह का कंपटीशन की कोई उसमें बात ही नहीं थी। तो जब कंपटीशन नहीं होगा तो क्वालिटी खराब होगी, और यही कारण है कि आज तक हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और जो एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, उसकी क्वालिटी बहुत लो होती है। ये एक बहुत बड़ा जिसको हम कहेंगे कि बैड इम्पैक्ट था ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। और इसी तरह से चलता रहा, ग्रोथ रेट हमारा बहुत लो रहा, इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो करनी चाहिए थी, जितना एक्सपेक्टेड था उतना बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुआ। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों में हमारी कंडीशन खराब थी। एग्रीकल्चर में जाकर के 1967 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आता है तो उसके बाद इम्प्रूवमेंट होता है, बट दैट वाज आल्सो लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन एंड पर्टिकुलर क्रॉप्स ओनली। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ सिर्फ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में हुआ, और जो क्रॉप्स हुए वो सिर्फ गेहूं और चावल में भी इसका असर दिखा। ये नहीं था कि पूरी कंट्री ग्रीन रेवोल्यूशन से बेनिफिटेड हुई थी इक्वली, बस कुछ ही रीजंस थे जिन पर इफेक्ट हुआ उसका पॉजिटिव इफेक्ट। तो फिर भी हम कैन से कि जो फूड रेंज के मैटर में हम लोग आत्मनिर्भर हो गए, लेकिन इंडस्ट्रीज की हालत बहुत खराब थी। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा बहुत ही पुअर था, और हम देखते हैं कि 1985 से ही हमारे यहाँ कुछ रिफॉर्म्स होने स्टार्ट हो गए थे, बट एक्चुअली जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी बना, दैट वाज इन 1991 अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव, व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर वाज मनमोहन सिंह। ये एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है। दिस इज द सेम ईयर, यू मस्ट कैलकुलेट, ये इतना आपको खुद समझना होगा। 1991 ये वही ईयर है जबकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है।
और ये वही ईयर है जबकि कोल्ड वॉर एंड हो जाता है, और इसी के साथ साथ इट वाज द विक्ट्री ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एंड आफ्टर दैट देयर वाज प्रेशर. Of course, there was pressure from WTO and IMF on all the countries to open up their economy, and India was also one among them. और इसी में इंडिया को ये मतलब करना पड़ता है. हालांकि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए हैं. हमारा ग्रोथ रेट बहुत हाई गया. जैसे पहले ये 2 से 3% हुआ करता था बिफोर 1991, और 91 के बाद ये 7% तक पहुंचा. तो ये चीज़ें जो हम देख रहे हैं, ये हालांकि जो चेंजेस आए, सिचुएशंस बदलते गए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, उसके साथ इकोनॉमी भी चेंज हुई, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड. तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हुआ, निगेटिव भी हुआ. दैट इज़ व्हाट वी आर स्टडिंग, वही हमें पढ़ना है ना. तो 1991 में हमारे गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया, और इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 चीज़ें थी: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया है. अब आगे हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे कि इंडिया में किस तरह से इम्पैक्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन का. ठीक है.